Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular video we are going to discuss a beautiful question related to mole concept, right? So let's see. Uh, if the atomic mass unit U star were defined to be 1/5 of the mass of an atom of C12 isotope, what would be the atomic weight of nitrogen in U star? That is what on this new scale. Atomic weight of nitrogen on conventional scale is 14, right? So first we will focus to this part and then we will go and solve this particular question, right? So atomic weight of nitrogen on conventional scale is 14. इसका क्या मतलब है समझते हैं, right? तो देखो जो हमारा conventional scale है that is what atomic mass unit or better we use what unified mass, right? So how it is defined? It is defined as 1/12 of the mass of an atom of C12 isotope, right? So this is basically 1/12 of the mass of an atom of C12 isotope, that is 1.992648 into 10 to the power minus 23 gram, right? And when you will calculate this value will come what? 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. That is basically 1 U, right? So when we say on conventional scale atomic mass, when we say on conventional scale atomic mass of nitrogen is 14 U, it means कि नाइट्रोजन का जो एक एटम है वो C12 आइसोटोप के एटम के मास के 1/12 पार्ट से, राइट? C12 आइसोटोप के एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स हैवियर है? 14 टाइम्स हैवियर है. दैट मीन्स one atom of nitrogen is 14 times heavier than the 1/12 of the mass of an atom of C12 isotope, which is nothing but this particular value, right? तो ये बात तो बहुत ही सिंपल समझ में आती है कि ये जो एटॉमिक मास है, राइट, दिस एटॉमिक मास इज बेसिकली व्हाट योर रिलेटिव मास, ठीक है ना? एंड रिलेटिव टू whom? सो रिलेटिव टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप. अगर मुझे एग्जैक्ट मास निकालना हो, राइट, if I have to calculate the exact mass of nitrogen atom, तो क्या करना पड़ेगा हमें? We will have to just multiply this 14 to this value, right? 14 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एक एटम इसी से तो 14 टाइम्स हैवियर है, राइट? So this is what your 14 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram will be the exact mass of one nitrogen atom, right? ठीक है. अब suppose if you have the exact mass, right? अगर आपके पास exact mass है तो आप atomic mass कैसे निकालोगे? तो atomic mass basically क्या होता है? यही कहता है ना कि कोई भी एटम है आपके पास, उसका एग्जैक्ट मास ले लो, राइट? उसका आप एग्जैक्ट मास ले लो और देखो कि वो जो एटम है वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप से कितना टाइम्स हैवियर है, राइट? ठीक है ना? कितना टाइम्स हैवियर है. तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. So this value will get cancelled out and this will become what your 40 U, right? So that is what your atomic mass. Now I hope you understood this particular part. Once you understand this question is very easy now, right? अब देखो ये क्या कहता है, अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन चेंज कर दूं, राइट, सो नाउ इट इज नॉट डिफाइंड एज 1/12 बट इट इज डिफाइंड एज 1/5 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, राइट? तो वो पूछ रहा है कि अब एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा. सो एटॉमिक वेट और मास को वी यूज इंटरचेंजेबली इन केमिस्ट्री, राइट? ठीक है ना? फिजिक्स में ऐसा मत करना, अदरवाइज यू नो न्यूटन की आत्मा बूढ़ा मान जाएगी, राइट? सो एटॉमिक वेट इज बेसिकली व्हाट, आपको क्या करना है, इस न्यू स्केल पे निकालना है. तो पहले तो आप नाइट्रोजन का एग्जैक्ट मास ले लो. सो दैट इज व्हाट 14 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram upon 1/5 of mass of an atom of C12 isotope. So that is what 1.992648 into 10 to the power minus 23 gram, right? सो इससे जो भी आएगा वो एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा ऑन दिस न्यू स्केल. इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं
तो यहाँ पे मैंने 12 से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 12 से मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट, 12 से, राइट. So this is basically what, now you see this is nothing but 1.66 into 10 to the power minus 24, right? So this value will become what, 14 into 5 upon 12, and that is nothing but you can say 35 by 6, right? Cancel out कर दीजिए, 35 by 6 u star, right? So of course if you will change the reference, right, the atomic weight which is relative mass, right? ठीक है ना, atomic mass is what, relative mass. So definitely if you will change the reference, the atomic weight will change, right? Now I'm giving you just one more important information, right, which is not the part of the question, right, but you must know. What about molar mass, right? अगर मैं कहूँ molar mass क्या change होगा? Will molar mass will change? So the answer is no. मोलर मास चेंज नहीं होगा. इनफैक्ट जेई मेंस में एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, राइट, ठीक है ना. तो मोलर मास इसलिए नहीं चेंज होगा बिकॉज इट इज व्हाट, एन एग्जैक्ट मास. तो आप बोलोगे सर आप प्रूफ करके दिखाओ, राइट. सो लेट्स सी द प्रूफ आल्सो, राइट. कन्वेंशनली हम लोग मोलर मास कैसे निकालते थे? तो मोलर मास हम लोग कैसे निकालते थे? एक एटम का मास है आपके पास, मान लो नाइट्रोजन के मोलर मास की मैं बात कर रहा हूँ, राइट. सपोज वी टॉक अबाउट मोलर मास of nitrogen atom, right? मोल तो किसी के लिए भी डिफाइंड है, एटम, मॉलिक्यूल्स, राइट, एनी एंटिटी, आयंस लाइक दैट, राइट. तो मोलर मास ऑफ एन एटम, नाइट्रोजन एटम का मोलर मास इज बेसिकली व्हाट, ये क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ 1 मोल एटम, राइट, ठीक है. एंड 1 मोल एटम का मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है. तो निकालते हैं. एक एटम का मास कितना है नाइट्रोजन का, 14, राइट. उसका आपको एग्जैक्ट मास लेना है, राइट. सो 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम विल बी द एग्जैक्ट मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम. लेकिन आपको इतने एटम का मास निकालना है, राइट. तो इंटू क्या कर दो आप, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट. एंड व्हेन यू विल सी दिस, राइट, ये जो है दिस विल कम एज 1, राइट, ठीक है ना. जब मोल का डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ से क्लियरली इसको बहुत ही ईजिली वी कैन प्रूव दैट 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज वॉट, बेसिकली 1. तो अगर वो 1 हो जाएगा सो इट विल बिकम वॉट, योर 14 ग्राम. एंड दैट्स वाई यू नो मोलर मास को हम लोग एक और नाम देते हैं, दिस इज वॉट, योर ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास लो, उसमें यू हटा के उसके आगे एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दो, राइट. सो दैट इज नथिंग बट योर मोलर मास. बट दिस वाज ऑन कन्वेंशनल स्केल, राइट. अब जो ये न्यू स्केल है जिसपे मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका मोलर मास चेंज नहीं होगा, इवन आपने स्केल चेंज किया, राइट, तो वो कैसे हो, राइट. सो वी विल प्रूव दैट, राइट. ओके, सो लेट्स सी. अगर आप इस न्यू स्केल पे नाइट्रोजन का, न्यू स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकाले तो कितना आया था, दैट एटॉमिक मास वाज बेसिकली व्हाट, 14 इंटू 5 बाई 12, यही था ना, दैट वाज यू स्टार. ओके, सो लेट्स सी मोलर मास इसका निकालते हैं. सो मोलर मास विल बी व्हाट, तो सबसे पहले इसका आप एग्जैक्ट मास निकालो एटम का, उसके लिए हमें यू स्टार की ज़रूरत पड़ेगी. तो यू स्टार इज नथिंग बट बेसिकली 1/5 of mass of 1 point, that is what, carbon 12 atom, right. So 1.992648 into 10⁻⁻23 gram, right. तो मोलर मास नाइट्रोजन का, तो ये तो आपका क्या हो गया, रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन ऑन दिस न्यू स्केल इनटू यू स्टार की जो वैल्यू है, राइट, ठीक है ना. तो उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट मास, क्योंकि नाइट्रोजन का एक एटम जो है वो इतना टाइम्स हैवियर है, किससे, 1/5 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप से. तो अगर मुझे एग्जैक्ट मास निकालना हो तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट. सो दिस विल बिकम व्हाट, यू 1/5 इंटू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23. एंड मोलर मास चूँकि निकालना है, ये तो नाइट्रोजन के एक एटम का एग्जैक्ट मास आया है, तो इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम. नाउ सी
ये वाला पार्ट तो किधर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। नाउ यू सी ये क्या बन जा रहा है, 14 इंटू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 12 into 6.022 into 10⁻23, right, gram. And you see this particular value is what, u on conventional scale, right. So this is 14 into 1.66 into 10⁻⁻24 into 6.022 into 10⁻23, and we know this particular value is what, your 1. So this will become what, your 14 gram. So the point is, if you will change the base, right, if you will change the base, if you will change the definition of atomic mass unit, your atomic weight will change, which is relative weight, right, or relative mass, but your molar mass will not change, because molar mass is what, exact mass. So I hope you understood this particular question. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.